नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। And I can't see Pradeep ji at all. Well, I can see him now. How interesting and how nice. And can you do something about the audio because I've got my own voice coming back at me. If you don't mind, please. Thank you. और प्रदीप जी, ceasefire. Ceasefire. आप देख रहे हैं नेशन नाउ और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. So Pradeep ji, finally Donald Trump had to intervene and finally declare a ceasefire between India and Pakistan. Well, that's a very good thing insofar as loss of life is concerned. All the people at the border, they were really facing a lot of problems. Lekin I don't know whether we've actually been able to achieve our strategic objectives. क्या जो भारत की रणनीति थी और भारत ने जो ये तय किया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है इस तरफ आएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हम लोग टेक ओवर करेंगे, और कराची पोर्ट को हम जो है ब्लॉकेड कर देंगे, और माशाल्लाह जो हमारी जो इन्फेंट्री और आर्मर जो है दे विल रेस अक्रॉस द डेजर्ट एंड वी विल टेक ओवर द टाउन ऑफ हैदराबाद. बट डिडंट हैपन. But Prime Minister Modi will be judged by his first statements. आतंकवाद को हम चेस करके टू द एंड ऑफ द अर्थ हम उसको चेस करके खत्म कर देंगे. हम उनके जो मास्टर्स हैं उनको टोटली डेसिमेट करेंगे. द लैंड ऑन विच टेररिज्म पलता है, पनपता है, उसको हम टोटली ध्वस्त कर देंगे. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी said he will do. Now we have to evaluate Prime Minister Modi on all these first statements that he has made. That's right. That's right. Now has he been successful? Have we been successful or as usual have we bowed down to pressure? जिस तरीके से 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में we bowed down to pressure, have we succumbed again? But I welcome the ceasefire. At least there won't be any loss of life. Long wars never helped anybody. That's right. The Russia-Ukraine war. Russia the superpower. Ukraine, the war is still on. I mean, there's nobody, you can't say Russia has won a decisive war. You can't, after years and years and years and years. They haven't. Examples before US Vietnam war. US Afghanistan. US Afghanistan war, until US packed their own bags and had to move from there. US Iraq. US Iraq. US Syria. Yes. But Iraq, at least they can say that Saddam Hussein ko फांसी तक पहुंचा दिया. But rest all the wars, Afghanistan especially, after pounding every mountain of Afghanistan. And sometimes we used to believe it that those years, whether this pounding of Afghanistan mountains costing earthquakes in India, because this प्रकार से pounding हो रहा था, US pounding of the Afghan mountains. So but they were not successful there. So long wars don't help anybody. So let's go across to our guests. I believe we've got Mr. Kirti Nidhi Pandey of the Samajwadi Party, and we've got our old friend Dr. Sudhir Dhone of the Congress Party. कीर्ति निधि पांडे जी, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं. नमस्कार, कैसे हैं सर? कैसे हैं? कीर्ति निधि पांडे जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? I don't think Mr. Pandey can hear us. पांडे जी नमस्कार. पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? Alright, Dr. Dhone, how are you, sir? नमस्कार डॉक्टर ढोने, हाउ आर यू सर? नमस्कार सर, नमस्कार. तो दोनों को, आप दोनों को युद्ध विराम की अनाउंसमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद. हाँ. I think Mr. Pandey is talking to somebody else. मुझे लग रहा है कीर्ति निधि पांडे जी शायद किसी और से बात कर रहे हैं. I would request the PCR उनको अपनी बातचीत खत्म करने दीजिए. And if he wants to join us, he is welcome. जनाब सर धोने साहब. सर आपका भी So धोने साहब, are you happy or are you unhappy? नहीं सर, ऐसा है कि युद्ध रुक गया, इससे तो हैप्पी है, क्योंकि जान तो किसी की भी जाती है तो उसका जो परिवार है बहुत दुख में रहता है, उसका बहुत लॉस होता है. तो युद्ध रुक गया, ये अच्छी बात है. लेकिन जिस तरह से बदला लेना चाहिए, भारत ने जो मौका था वो गंवा दिया. अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ
जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के प्रशंसक है, समर्थक है, वो भी लोग नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ऐसा होगा। और अमेरिका ने, ट्रम्प ने डिक्लेयर किया पहले जी कि दोनों देशों से मेरी बात हो गई और अभी दोनों देशों ने ये किया, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ऐसा उनके शब्द है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ युद्ध विराम, सीज फायर, यस मुझे- दैट्स व्हाट ही सेड। हाँ, तो ये अभी इसका मतलब ये ऐसा हो गया सर। ये तो खुशी तो इसलिए है कि भाई युद्ध रुक गया, अच्छा है, कोई भी जीवित हानि नहीं होनी चाहिए। जी। फिर वो भारत के आम पब्लिक हो या पाकिस्तान के आम पब्लिक हो, आम पब्लिक का कुछ इसमें दोष नहीं रहता है। जो भी करते हैं वो ये पाकिस्तान के तो राजनेता और लश्कर दोनों भी करते हैं, तो इसलिए वो उनकी सज़ा, गलती की सज़ा आम आदमी को नहीं मिलनी चाहिए, बात है। लेकिन जो अभी इंदिरा गांधी की बहुत याद आ रही है सर, कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज भी अपने को मौका था बलूचिस्तान एक देश अलग करने का, वो देश अपन ने, वो जो मौका था वो गंवा दिया सर भारत सरकार ने। अभी गवा दिया, आपको लगता है? आपको लगता है कि हाँ। ये दैट दिस सीजफायर विल स्टे? बिकॉज आई हैव अ डिस्टिंक्ट सस्पिशन इट वोंट। क्योंकि देखिए साहब, जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की फौज एक दूसरे के ऊपर, अभी वो ड्रोन और मिसाइल नहीं खेलेंगे, बस ये हुआ है। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स, और किसी चीज पर बातचीत नहीं होगी, ऐसा कहा गया है दोनों साहब। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन बात ऐसी है कि अभी युद्ध रुक गया, अभी क्या करेंगे एक्चुअल में? अभी इस स्थिति का फायदा लेके बलूचिस्तान को मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान के और एक टुकड़ा करना चाहिए था जी, बलूचिस्तान वो तो अभी भी कर सकते करने हैं। का मौका था। और ये जो शुरुआत किए थे पाकिस्तान ने, गलती किए थे उनके आतंकवादी हिंदुस्तान में छोड़ के, तो पूरा दुनिया भी नहीं बोल सकती थी कुछ कि आपने ऐसा क्यों किया। और बलूचिस्तान के लोगों में तो गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक नेचुरल हो जाता, नेशनल जस्टिस हो जाता था कि बलूचिस्तान के लोगों को, और एक अपना भी एक बदलाव हो जाता था कि आपने हमारे 26 लोगों को मारा, लेकिन आपके देश के हमने टुकड़े कर दिए। दोनों साहब 9 लॉन्च पैड्स को हमारे आर्म फोर्सेस ने ध्वस्त कर दिया, लश्कर ए तोयबा के पोस्ट को ध्वस्त कर दिया, जैश ए मोहम्मद के पोस्ट को ध्वस्त कर दिया, हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्ट को, जो टेरर पोस्ट लॉन्च पैड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी 4 जैश ए मोहम्मद पोस्ट डिस्ट्रॉय, 3 लश्कर ए तोयबा पोस्ट और 2 हिजबुल मुजाहिदीन। क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है? अक्रॉस द बॉर्डर जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, पंजाब हो, डिस्ट्रॉय करना। दोनों साहब नहीं सर, ऐसा है कि अगर ये भारत सरकार के, जो भारत सरकार ने अगर ये डिक्लेयर किया है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो ठीक है, क्योंकि ये टीवी पे तो अभी तो इस्लामाबाद पे कराची तक अपना कब्जा हो गया सर। न्यूज़ चैनल जो आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, बहुत सारे चैनलों ने तो उन्होंने तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये कब्जा सिर्फ वो चैनल वालों ने किया है, कोई अपने भारत सरकार ने किया नहीं है। ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। देखी नहीं, आप जो बोल रहे हैं अगर ये ऐसा हुआ है तो बहुत खुशी की बात है सर। नहीं दोनों साहब, ये भारत सरकार के प्रेस ब्रीफिंग में आया कि हमने बहुत ये अच्छी बात है। 4 लेकिन सर ये बात ऐसी है, शुरुआत आप देखिए, ये जैसे मोहम्मद, ये जो बोलते आप, ये जो अजहर मसूद को किसने छोड़ा था? हमने, सरदार को कौन लेके गया? हम लोगों ने छोड़ा भारतीय जनता था। पार्टी की सरकार थी, जसवंत सिंह परराष्ट्र मंत्री थे, वो लेके गए थे। अटल बिहारी की सरकार थी, उन्होंने तो उनको लेके गए थे। उनको पकड़ा था किसने? जब सरकार थी कांग्रेस की 91 में पकड़े थे, और इनको बाद में 96 में छोड़ दिया सर इन्होंने। तो दोनों साहब, लेकिन आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, अब यू कैन गो बैक टू पॉलिटिक्स। अब क्या है? अब तो आप असल में अब तो आप प्राइस राइज की बात कर सकते हैं, अब आप वो क्या है, वक्फ बिल की बात कर सकते हैं, अब आप जो है बाकी सब चीजों की बात कर सकते हैं, लाड़की बहन योजना की भी बात कर सकते हैं। अभी बात चलेगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के फर्क की जी, इंदिरा गांधी की और मोदी की तुलना होगी, आप पूरा देश कर रहा जी। और मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, फॉलोअर है, वो भी नाराज हो गए कि ऐसा कैसा हो गया। आम पब्लिक भी नाराजी हो गई। और सर सबसे बड़ी बात यह जो आपने बात कही, बदला ऐसा लोगों को नहीं लग रहा कि सर मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरा इलेबोरेट करें थोड़ा सा, जो अभी आपने बोला। हाँ, सर अनाउंसमेंट आती है यूएस प्रेसिडेंट द्वारा, हाँ, भारत के द्वारा नहीं आती, पाकिस्तान के द्वारा नहीं आती। यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैंने तय कर लिया है कि अब आपका सीज फायर होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग।
मतलब ये क्या मतलब हुआ सर? नहीं, ये सर ऐसा है, इसके पहले जब भी ऐसे मौके आते थे, कोई दूसरे देश के लोग बोलते थे, तो भारत सरकार का ये तय था कि ये हमारा द्विपक्षीय मामला है, ये हम आपस में, हमारे दोनों देशों का मामला है, तीसरा उसमें कोई मध्यस्थी नहीं कर सकता, जी। ये तय हुआ था। तो यही बात चलती थी। लेकिन आज तो भारत सरकार ने वो अधिकार गंवा दिया। भारत सरकार यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, तीसरा देश इसमें मध्यस्थी कर रहा, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा था, अब यानी इन दोनों का बॉस तो अमेरिका दिख रहा है आज, तो ये तो बहुत गलत हो गया ना। Sir, what has the president said? President of the United States of America, after a long night of talks initiated by the United States. Please remember, initiated by the United States. I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. This is what he has said. इसका This is मतलब what क्या he है has सर? said. जी इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने मध्यस्थी की थी जी और वो मध्यस्थी ये यानी यशस्वी हो गई, और उसके बाद दोनों देशों ने मान लिया कि सीज़फायर करेंगे। मैं दोनों देशों को शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला है। जी तो इसका मतलब अमेरिका ने पहल किए थी, और उसके अमेरिका के पहल पे भारत और पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया है, भारत और पाकिस्तान की सरकार ने। सुधीर दोने साहब, तो मगर ये अपने देश के अधिकार अमेरिका को कैसे दे सकता है भारत सरकार? ट्रुथ सोशल करके But जो हम तो जी हाँ। ऐसा समझते थे डीजीएमओ पाकिस्तान ने पहले फोन कर दिया। ये यहाँ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस देश का, इंडिया भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने पहले इनिशिएट कर लिया। हमें करीबन 3 बजे के आसपास फोन किए, 355 और 3:55 4 बजे के आसपास फोन किए और हमको कहा कि वी वांट टू एंटर इनटू सीज फायर, एंड आफ्टर दैट इंडिया रिस्पोंडेड। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया का यही है। नहीं, ठीक है, तो क्या मिलाया क्या देश ने? वो अभी देखिए, लोगों की भावना मैं बता रहा हूँ, लोग बोल रहे कि क्या अजहर मसूद आ गया भारत सरकार के पास, क्या पाक व्याप्त कश्मीर अपने पास आ गया, क्या हुआ, इसकी फलित क्या है? मैं 1 मिनट ये अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ। ये अभी जो ढोने साहब ने सवाल पूछा है, ये हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज अपने कमेंट्स में भेजें। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या मिला? ये जो लड़ाई अभी हुई है 5 या 6 दिन की, उसमें भारत को क्या मिला है? अभी तक ना हाफिज सईद हमारे पास आया है, ना मसूद अजहर आया है, ना वो क्या है वो ज़कीउर रहमान लखवी हमारे पास आया है, और ना ही दाऊद इब्राहिम हमारे पास आया है। और हमने ठीक है हेडक्वार्टर्स उनके उड़ा दिए हैं, लेकिन अभी वहां पर हमारे पास तो 42 की लिस्ट है ना, हमने तो 9 ही उड़ाए हैं ना। बाकी का क्या क्या पाकिस्तान ने एग्री किया है कि वो जो बाकी 33 और अड्डे हैं आतंकवादियों के, क्या वो उनको खत्म करेंगे? अब आप लोगों का इसमें क्या मत है, जरूर भेजें। प्लीज डू सेंड अस योर कमेंट्स, आई रियली वुड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक। जी ढोने साहब, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि अभी आज देश की जनता इतनी खुश नहीं दिख रही है, क्योंकि जो लोगों के दिल में जो जज्बा था कि अपने देश में आके उन्होंने अपने लोगों को मारा है और कई परिवारों को उन्होंने बर्बाद किया है, नई जिसकी शादी हुई थी उनको भी मारा है, तो धर्म पूछ के मारा था, ये भी था, तो ये बदला नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है सर। लोगों के दिल की भावना बता रहा हूँ मैं। तो लोग नाराज हो रहे हैं कि ऐसा कुछ हमको दिख रहा नहीं फलित कि क्या पाकि ये सिर्फ आज तक पे, जी न्यूज़ पे, अर्नब गोस्वामी का कौन सा चैनल है उस पर, ये जो है ये चैनलों पे मैं तो देखता भी नहीं सर ये चैनल, तो ये चैनल पे अभी आ रहा कि भाई ये इस्लामाबाद पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, कराची पे कब्जा। अब कहाँ गया कब्जा? ये नहीं झूठ, ये सब अभी अब इसके बाद सर ये चैनल कोई देश के लोग नहीं देखेंगे। अभी ये देश के लोग देखेंगे, वायर देखेंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी का देखेंगे, रविश कुमार का देखेंगे, और सत्यहिंदी.com देखेंगे, और नेशन नाउ देखेंगे कि यही निष्पक्ष चैनल है, यही देखो तो अपने को सच्ची जानकारी मिलेंगी। सर वो तो बहुत ही वाहियात था, वो सर वो जो उन्होंने किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो किया, उससे ज्यादा वाहियात बात और कोई हो नहीं सकती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब 42 साल 43 साल हो गए मुझे एज ए जर्नलिस्ट, मैंने कभी ऐसी नौटंकी मैंने कभी जर्नलिज्म में नहीं देखी है। इसको चापलूसी बोलते हैं सर। अरे चापलूसी भी नहीं है सर, चापलूसी भी करने का एक तरीका होता है, ये छोड़िए ना। हमारे साथ पांडे साहब वापस आ गए हैं। पांडे साहब नमस्कार।
नमस्कार। पांडे जी आप खुश हैं कि नहीं कि सीज फायर हो गया? दिल से बताइए। देखिए, दिल से बताइए, दिल से बताइए। देखिए युद्ध तो बिना शुरू हुए ही सीज फायर हो गया। जी। और जिस तरीके से देश की तमाम मीडिया हमको छोड़ के लगातार, हमको छोड़ के हाँ, आप जैसे लोग कुछ बरी हैं उसमें, जी तमाम यूट्यूब चैनल, जिसे तमाम अभी हमारे साथी गिना रहे थे, तमाम चैनल के नाम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तमाम चैनल तो रातों रात पाकिस्तान पे, पांडे जी नाम ले सकते रातों रात, नाम ले सुन सकते हैं। लीजिए, रातों रात पाकिस्तान पे कब्जा करा रहे थे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे थे। लगातार की रात में सोइए, सुबह पाकिस्तान नाम का कोई शब्द नहीं रह जाएगा। और 140 करोड़ की आबादी का देश भारत देश, 140 करोड़ के लोग चाहते थे कि जो पहलगाम में हुआ, उसके पहले जो पुलवामा में हुआ, जो उसके पहले पठानकोट एयरबेस में हुआ, उसका बदला लिया जाए। और 56 इंच की छाती लिए देश के प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। देश की पूरी जनता, देश के सभी राजनीतिक दल, सभी विपक्षी दल जिसके साथ खड़े हों और इस बात की तस्दीक कर रहे हो कि आप फैसला लीजिए, आप देश के लिए कदम बढ़ाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णायक फैसला नहीं ले पाए और हमारे मुल्क का मालिक अमेरिका हो जाएगा। हमारे मुल्क का मालिक अमेरिका रहेगा। ये ऐसा कभी हुआ नहीं। और सुनिए, हमारे मुल्क का मालिक अमेरिका, हमारा फैसला अमेरिका लेगा। हम अमेरिका के अधीन हो गए। कल तक विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, 56 इंच का सीना लिए विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, और हमारा फैसला अमेरिका लेगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था तो अमेरिका पाकिस्तान में कैंप करके अपने दुश्मन से बदला लेने का काम किया था। उसी पाकिस्तान में कैंप किया, और जब तक आतंकवादियों को, जिसने उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया, उनको समाप्त नहीं कर दिया, तब तक वो पाकिस्तान नहीं छोड़े। वो अमेरिका हमारे युद्ध विराम करा, जहां हमारे लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आज जो डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का 8 एयरबेस ध्वस्त कर दिया। रफीकी, मुरी, चलाला, रुबीना यार खान, सुकूर, चुनियान, बसरूर, सियालकोट, और सबसे मेन नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, उसको ध्वस्त कर दिया। इसलिए पाकिस्तान, तो किस प्रकार से आप देखते हो, क्या आप थोड़ा क्रेडिट देंगे नहीं इस प्रधानमंत्री और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को? कीर्तिनिधि पांडे साहब, देखिए, हमारे देश के जितने सैनिक हैं, देश की जो हमारी डिफेंस व्यवस्था है, दुनिया के सबसे ज्यादा बहादुर सैनिक अगर कहीं है तो भारत देश के अंदर। हमारे देश से ज्यादा बहादुर सैनिक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। हमारे देश के सैनिक पूरी बहादुरी, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में हमारे यहां देश के प्रधानमंत्री के अधीन है डिफेंस, महामहिम के अधीन है डिफेंस, और डिफेंस को अगर आदेश हो जाए तो कोई निर्णायक जंग हमारे सैनिक लड़ने के लिए तैयार। हमारे सैनिकों की लगातार हत्याएं हुई, हमारे लोगों की लगातार हत्याएं हुई। मैंने तो कई घटना बताया ना, पहलगाम हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ था, उसके पहले पठानकोट हुआ था। पठानकोट में तो प्रधानमंत्री जी ने ISI को बुलाया जांच करने के लिए, पाकिस्तान की जांच एजेंसी को आमंत्रण दिया, और लगातार एक के बदले 10 सर लाने की बात करने वाले, एक सर के बदले एक सर भी नहीं ला पाए। देश के लोग आहत हैं इस फैसले से। देश के लोग चाहते थे एक निर्णायक जंग होना, एक निर्णायक लड़ाई होना, एक आर पार का जंग होना, क्योंकि रोज रोज के कचकच से अच्छा है कि एक बार फैसला आर और पार का हो जाए। और जब तक आर और पार का फैसला होगा, तब तक कोई निर्णायक जंग इस देश के अंदर सुकून और शांति नहीं ला सकती। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मैं थोड़ा आगे जाके कह रहे हैं कि यूके उक्रेन रशियन उक्रेन वॉर सालों साल से चल रहा पांडे जी, वहां पर कुछ निर्णय अभी तक नहीं है। सुपर पावर है रशिया। अफगान US वॉर देखिए, US वहां पर थे, फिर लास्ट में सब बोरिया बिस्तर लेके भाग गए वहां से। तो क्या ये लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर एक सॉल्यूशन था? क्या एक शॉर्ट वॉर ही एक नतीजा पूर्वक कुछ ना कुछ रिजल्ट उस ओरिएंटेड और डेवलपमेंट के लिए ठीक है? कैसे देखते हो पांडे साहब आप? देखिए, इस देश के अंदर जो बात आपने कही कि दुनिया में रूस और यूक्रेन का भी जंग चल रहा, सालों साल चल रहा, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का सुपर पावर आज तक वार रुकवा नहीं पाया।
अभी तक जंग जारी है दोनों, यूक्रेन और रूस के अंदर। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का जंग शुरू ही नहीं हुआ, बिना शुरू हुए युद्ध विराम हो गया। 140 करोड़ लोग चाहते थे निर्णायक जंग हो, 71 की तरह जंग हो। पाकिस्तान का एक टुकड़ा अगर बांग्लादेश, तो कोई एक टुकड़ा और बने, पीओके भारत के अधीन हो जाए, हम तो वो चाहते थे जी। लेकिन इस तरीके के जो फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से, इससे मैं ये समझता हूं कि भारत की जनता बहुत आहत है और बहुत, हमको लगता है कि सब लोग इस बात के लिए अफसोस कर रहे होंगे कि सरकार ने किस तरीके का फैसला लिया और अपना पावर अमेरिका को दे दिया। अमेरिका तय करेगा कि हमारे देश का में हम अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, बात तो अमेरिका तय करेगा। और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो हम कीर्तिनिधि सुपर पांडे पावर बनने की बात जी, कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो कीर्तिनिधि पांडे जी, आपका मत ये है, मैं बीएन कुमार साहब से बात करता हूं। बीएन कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। बीएन कुमार साहब, we could have said no. The Americans, Mr. Marco Rubio and the Vice President J.D. Vance बहुत प्रेशर डाल रहे थे, हम मना कर देते कि भैया जब तक ये 1, 2, 3, 4 चीजें पाकिस्तान नहीं करेगा, यानी हाफिज सईद को हमें नहीं देगा, जब तक कि वो मसूद अजहर जो है जब तक यहाँ नहीं आएगा, कौन मारा गया था, जब तक जकीउर रहमान लखवी जो है जब तक यहाँ नहीं आएगा, दाऊद इब्राहिम जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, वी विल नॉट एग्री। व्हाई डिड वी एग्री? बीएन के साथ जरा जोर से बोले बीएन के साथ। इट इज नॉट अ वॉर। यस, ये नहीं है, इट इज ओनली ऑपरेशन सिंदूर दैट वाज targeted at those terror sites. कैन समबडी इंक्रीज बीएन के वॉल्यूम प्लीज? आई कांट हियर हिम एट ऑल। जी बोलिए सर, बोलिए बीएन के साथ बोलिए सर। बीएन के वॉल्यूम इज नॉट देयर। बोलिए सर, बीएन के साथ एक बार बोलिए। Can you hear? So first Yeah, I of all, can hear you now. Fantastic. Yes, I can hear you now. Please go ahead. Yeah, this is not a war. This is only a limited action called Operation Sindoor to strike those terror sites. वो एक बात है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा सीज फायर के लिए एग्री हो गया, वो एक्चुअली यस इट कुड हैव बीन कंडीशनल। हम कह सकते थे कि सबसे पहले टेरर वालों को जितना भी है हैंड ओवर कर दो, और यू Pakistan could have said honorably कि let there be international inquiry, but as the earlier speaker said, why did we have to listen to the United States of America? अमेरिका के हाथ पे भी खून से रंगे हुए हैं ना, वो कहाँ साधु संतात्मा है, वो भी तो हर जगह युद्ध करवा रहा है। पहले हम लोगों ने इनफैक्ट हमने जनरेशन ने वियतनाम देखा, बाद में अफगानिस्तान देखा, अब यूक्रेन का भी देख रहे हैं। यूक्रेन को तो उन्होंने पहले सपोर्ट किया था ना नाटो के हिसाब से, उनको अब रशिया के खिलाफ जंग छेड़ो, हम लोग साथ रहेंगे करके, और सब एंड टॉप ऑफ इट ट्रम्प, how can you accept Trump's conditions? Yeah, this is absolutely. So this sounded like a diktat to me. That thing Yeah, he put on and Truth दूसरी Social, वो तो ऐसा था कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि भैया सीजफायर हो गई, आप चुप बैठो। क्या और है? वो अनाउंस कर रहा है, वो नहीं He is announcing. Yes, he announced ट्रम्प it. अनाउंस कर रहा है। Yes. हम लोग दोनों से पहले हम कर रहे हैं, और उसका पाकिस्तान इंडिया क्या देखा, मैं नेट ढूंढ रहा था तो ये मैसेज है बीच में इमरान खान मार गया करके। दैट्स व्हाट पाकिस्तान वाज ट्वीटिंग एंड नॉट अबाउट द सीज फायर। 5 बजे वो बोलते हैं सीज फायर हो गया, 6 बजे के बुलेटिन में ऑफिशियल इंडिया डिक्लेयर्ड, बट ऑफ कोर्स ऑल द पीपल हमने ट्रम्प की सुननी पड़ी, क्योंकि ट्रम्प इतना बदमाश आदमी है। आई हैव नो हैंगअप्स इन सेइंग दैट अपने भारतीयों को बेड़ियां और हैंडकप्स लगा के भेजा था वो, बाकी वो देश के साथ इस तरह की मिसबिहेव नहीं किया। और दूसरी बात जो है, यस सब मानते हैं कि दोनों ने एक्शन शुरू किया, वहां से भी हुआ, हमारे से भी हुआ। उन्होंने 400 ये भेजा टर्की से निकाल के, ड्रोन भेजा, हम लोगों ने भी उनको अटैक किया, सबसे उनका एयरबेस ध्वस्त कर दिया। लेकिन दोनों साइड को war is unaffordable for any country. But बीएन कुमार साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का फर्स्ट स्टेटमेंट था, माय वॉर इज अगेंस्ट द टेररिस्ट, टेररिस्ट को चेस करेंगे टू द एंड ऑफ द अर्थ, टेररिस्ट को मास्टर्स जो है उनको हम ध्वस्त कर देंगे, टेररिस्ट का सरजमीन जहां से वो पनप रहे उसको हम टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस वाज अ वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट, वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट। हाउ डू यू सी अबू जिंदाल
हफीज मोहम्मद जमील टेररिस्ट, यूसुफ अजहर, अबू अकाशा, मोहम्मद हसन खान, रऊफ असगर जो नंबर 2 कमांडर्स थे लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, क्या टेररिस्ट मरा नहीं है इस एनकाउंटर में? Dawood Ibrahim, we could have said, give us Dawood and we'll stop firing. Give us Masood वगैरह. जी इसमें जो मर गया है उसका भाई था, उसकी फैमिली थी, ठीक है, वहां तक आप लोगों ने बोला कर दिया, और हम कहते हैं कि 100 लोग मारे गए. एक छोटी सी बात है, अगर 100 लोग को मारते, सिविलियंस को मारते, आई मीन टेररिस्ट दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म ना, we say terrorists are not civilians, fine, but if actually 100 people, 150 people died, Pakistan would have showed those bodies ना, कि देखो कितने लोगों को इन्होंने मारा करके. This shot that we are showing, बीएन कुमार साहब, ये जो फुटेज दिख रहा है आपको, ये फुटेज तो देख रहे हैं, दिस इज अ टेररिस्ट किल्ड, आतंकवाद को मारा था, और आतंकवाद के जनाजे जो फाइनल होते हैं उसमें यू गॉट द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो वो तो दिख रहा था पूरी दुनिया को. तो यू थिंक दैट इज थोड़ा तो कामयाब हो गया मोदी साहब? नहीं, बिल्कुल, तो ये तो सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, इट इज आर्मी इटसेल्फ सबसे बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन. आईएसआई सबको सपोर्ट करते, उनके सपोर्ट से तो आ रहे हैं ना, इनको आगे छोड़ देते हैं, कवर फायर देते हैं उनको, अपने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, वो बीच में से जगह बनाकर उन लोग घुस जाते हैं. सबसे पहले ये घुसपैठ रोकने के लिए ठोस कदम अपने को भी उठानी चाहिए, अपने देश को भी उठानी चाहिए. वॉर ठीक है, अभी अटैक चालू हुआ, what do you think is going to happen now? BNK, politically speaking. लेकिन Forget about everything else. BNK, one second. एक बात बोलिए. एक बात है कि अकाउंटेबिलिटी, ये जो पहलगाम हुआ है उसके भी अकाउंटेबिलिटी अभी तैयार करना जरूरी है, क्योंकि what kind of security lapse we had? I mean, 2,000 people, tourists were gathering in a place, we had no security, absolutely. पुलवामा में हुआ. We can ask that question now. BNK साहब, now that a ceasefire has been declared, we need to ask these questions now. अभी क्या है, अभी तो सीजफायर हो गया ना सर, युद्ध विराम हो गया. अब आप बोलिए कि पहलगाम कैसे हो गया? हाउ डिड यू अलाउ इट टू हैपन? उसके पहले पुलवामा कैसे हुआ? उसके पहले पठानकोट, नगरोटा, उरी, ये सब कैसे हो गए? मतलब my point is somebody has to take responsibility. And thirdly, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं बीएनके साहब, पॉलिटिकली इसका क्या इंपैक्ट होगा? पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे has Mr. Modi lost his political capital because of by agreeing to the ceasefire? आप बताएं सर. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि as it is somebody has to raise this. आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आवाज उठेगी, but they will manage it because BJP is known for managing things. Wow. And they have the majority. Plus अभी तक उन्होंने जो अपना पोजीशन जो है कंसोलिडेट करके लिया है, they will go tom about this. They will show it as a victory, saying that हम लोग they're already doing it. Pakistan, they're already doing it. And they were using civilian flights as a shield. So they will say कि Trump has forced Pakistan to get back. Then we got back. डॉक्टर They will manage it. डॉक्टर ढोने आप बताएं. ढोने साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी को आपने पूछा कि इससे क्षति पहुंचेगी या नहीं? होने वाला है? हाँ, क्या सर? आपने पूछा है कि पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? बोलिए सर. ऐसा है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका पॉलिटिकल फायदा लेने की बहुत कोशिश की है. उन्होंने जैसे ही हुआ, उन्होंने उनके ऑफिशियल जो सोशल मीडिया का हैंडल है उस पर से डिक्लेयर कर दिया, पोस्ट डाल दिए कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, ऐसा उन्होंने बोल दिया. और इसमें हिंदू मुस्लिम का शुरू किया कि आप एक हो जाओ, सब हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि इन्होंने जात नहीं पूछी, इन्होंने देखा हिंदू है तो मारो. इस तरह से उन्होंने शुरू किया और देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इन्होंने काम शुरू किया. लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ये मुसलमानों के लिए एक परीक्षा का यानी मौका था कि अभी मुसलमान इस देश के और नेता क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं. हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ये मुसलमान के बारे में कुछ यानी पाकिस्तान के बारे में इनके दिल में कुछ है, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने हर जगह पे पाकिस्तान का विरोध किया. जो ओवैसी जो है, जो भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं,
और उनकी कट्टरपंथी ऐसी इमेज है। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने में मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। और हिंदुस्तान भारत सरकार को भी वो सोफिया कुरैशी को सामने एज ए लीडर बनाना पड़ा और उनको डिक्लेयर करने के लिए बोलना पड़ा। इस पर से ये इस देश में जो माहौल बना था, जो पहलगाम क्या जो ये दहशतवादियों ने हल्ला किया, लोगों को मारा, उसके बाद जो एंटी मुस्लिम माहौल बना था वो माहौल खत्म हो गया और देश में हिंदू मुसलमान में यूनिटी बन गई। ये मौका ये हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई और वो नहीं कर सके। दोनों साहब मैं जो अपनी फौज है, फौज को मैं एक उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि फौज ने ये फौज का ही था कि भाई अपने को पूरे दुनिया के जो मुस्लिम देश है वो अपने खिलाफ में न जाए, पाकिस्तान के फेवर में न जाए। इसलिए हो सकता है कि सोफिया कुरैशी को सामने कि हम ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पाकिस्तान ने जो अन्याय किया हमारे साथ इसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये दुनिया को दिखाने के लिए सोफिया कुरैशी को सामने किया गया और वो अच्छा किया और फौज के कहने पे ही ये हुआ है। सरकार ने भी माना है, मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा थी हिंदू मुस्लिम करने की वो पूरी तरह से फेल हो गई। दोनों साहब दूसरा जो कांग्रेस ने हाईलाइट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाईलाइट कर दिया कि करीबन $2.4 बिलियन जो IMF फंड पाकिस्तान को कर रहा था वो मोदी गवर्नमेंट नाकामयाब रहे। एब्सटेन किया हमारे लोगों ने उस रेजोल्यूशन जब सामने रखा था IMF के। तो एक इतने सालों से हमारे क्या वहां पर लोग कर रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट के लोग जो मंत्री है जो वहां पर IMF में रिप्रेजेंट करते हैं, देश का क्या नीति था कि ये इतने आसानी से टेरर फंडिंग वाले लोगों, टेरर कंट्रीज को फंडिंग मिल रहा है। तो क्या जिस प्रकार से कांग्रेस कह रहा है कि इट इज अ डिफीट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट दैट दे कुड स्टॉप इट, डोने साहब वो IMF सही बात सर। ऐसा है कि कांग्रेस के वक्त में जो मिनिस्टर रहते थे वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट रहते थे। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी पहले अर्थमंत्री थे, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो ऐसे जो लोग थे, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया था और कांग्रेस के सरकार के वक्त मालूम था कि ये होम मिनिस्टर है, ये परराष्ट्र मंत्री है, ये अर्थ मंत्री है, ऐसा मालूम पड़ता था। अभी तो हमको मंत्रियों के नाम भी मालूम नहीं कौन कौन मंत्री, हमको एक ही मालूम है मोदी है, बस मोदी चलता है। रेलवे का कुछ उद्घाटन रहा वो भी मोदी करते हैं, हर बात में मोदी दिखते हैं। और इनके जो अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन, ये कैसी बात करती है, उनकी पढ़ाई भी क्या है ये भी देखिए। तो ये फेलियर, इनकी सरकार के लोग भी फेल है, मोदी जी खुद फेल है, उनकी पढ़ाई के बारे में लोगों के दिल में संशय है। तो इनके पास ना पढ़ाई है, ना इनके पास ना इंटेलिजेंट है और ना ही ये कोई इनके पास ना 56 इंच का सीना भी है। मैं कीर्तिनिधि पांडे साहब के पास जाता हूं सर। बहुत दुख हो रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट बोलते हैं मैंने जी डोने साहब कि मैं अनाउंस करता हूँ, मुझे अनाउंस करने में खुशी होती है, ऐसा बोल रहे हैं। यानी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हो गया। राइट। सो लेट मी गो क्रॉस टू पांडे साहब। बोलना चाहिए कीर्तिनिधि पांडे जी, हम लोगों की अपेक्षा ये थी, मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत उम्मीद बता रहा हूं, हम लोगों की अपेक्षा ये थी, स्पेशली मेरी, कि भाई किसी भी तरीके से पाकिस्तान को घेरने में हम लोग सफल होंगे। पांडे साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को घेरने में हम लोग सफल हुए? नहीं सर, हमको तो लगता है कि हम लोग पाकिस्तान को घेरने में असफल है। और जो लड़ाई, जो मुहिम जनता 140 करोड़ की आबादी भारत देश के लोग चाहते थे, उसमें भारत की सरकार फेल हो रही है। और अगर ये कहने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमें मोदी जी ट्रंप ने कहा तो इसलिए हम युद्ध विराम कर रहे हैं, अगर इसमें गौरवान्वित हो रहे हैं लोग। कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने यूक्रेन और रूस का वार रुकवा दिया, जो आज तक चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खबरें चली। वो आज ये कह रहा कि ट्रंप जी के कहने पर मैंने अगर वापस ले लिया, युद्ध विराम कर दिया, तो क्या पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला पूरा हो गया? क्या पुलवामा में मारे गए शहीदों के अपमान का बदला पूरा हो गया? क्या पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ उसका बदला पूरा हो गया? क्या उरी में जो हमला हुआ उसका बदला पूरा हो गया?
क्या लगातार जो सैनिक हमारे सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं, क्या उसका बदला पूरा हो गया? मैं तो समझता हूं इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत देश ने कभी नहीं देखा। सर यहां पर यह बोला गया था, मोदी जी ने बिहार में जाकर के ये बात कही थी, सऊदी अरेबिया में थे वो, उसके बाद ये घटना हुई और मोदी जी ने बिहार पटना से ये बात कही थी कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को और जिस जमीन से वो ये काम कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही मुझे even if I have to chase them to the ends of the earth. Do you think he has chased them to the ends of the earth? मतलब उन्होंने क्या दुनिया के हर एक कोने से निकाल करके आतंकवादियों को निस्तनाबूद कर दिया है? सर ये मोदी जी के शब्द मेरे नहीं है। देखिए लगातार मोदी जी ने कहा था जी कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, और लगातार उनका एक कहना है कि सौगंध हमें इस मिट्टी की ये देश नहीं बिकने देंगे। देश की सारी बड़ी एजेंसियां बिक रही हैं, BSNL बिक रहा है, वेल बिक गया, गेल बिक गया, रेलवे बिक गई, लगातार बेच रहे हैं। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और अब तो देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात पे विचार करना पड़ेगा। तमाम वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हैं, पत्रकार साथी बैठे हैं, इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, भारत सरकार मोदी जी चला रहे हैं कि ट्रंप चला रहे हैं। अब इस पे तो भारतीयों को विचार करना पड़ेगा कि हमारा सर्व गर्व से ऊंचा हुआ आज कि हमारा सर्व गर्व से नीचा हुआ। अब हमको डिक्टेट ट्रंप करेंगे कि इस देश को मोदी जी चलाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाएगी, या लोकतंत्र चलेगा कि ट्रंप से चलेगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। 140 करोड़ की आबादी का भारत देश इस पर विचार करेगा, और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में इसका जवाब इस सरकार को निश्चित रूप से देना पड़ेगा। कीर्तिनिधि पांडे साहब, अब सीज फायर हो गया तो चर्चा करने की बात है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर सामने दिख रहा था? 19-4 जैसे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से कहा, 19-4 को प्राइम मिनिस्टर का सभा श्रीनगर में था, श्रीनगर में सभा था, कैंसिल इसलिए हो गया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। 19-4 सभा कैंसिल होता है, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जाता श्रीनगर में, और 22-4 को पहलगाम में आतंकवादी हमला। तो क्या हम अपने मूवमेंट, ट्रुप मूवमेंट मोबिलाइजेशन में, सिक्योरिटी एनफोर्स करने में कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा एक सक्षम नहीं था? पांडे जी देखिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी बात को बहुत जस्टिफाई करने के लिए पीछे से भी कुछ बातों को तस्दीक करने की जरूरत है। वो घटना चाहे पठानकोट एयरबेस की हो, या पुलवामा में भी तो शहीदों पे हमला हुआ था, 300 किलो RDX आया था। आज तक कोई एजेंसी बता दे, कोई पत्रकार साथी बता दे, कोई मीडिया हाउस बता दे कि वो 300 किलो RDX कहां से आया था? कोई जांच एजेंसी बता दे, आज तक नहीं बता पाए। आज तक इस बात की तस्दीक ही नहीं हो पाई कि 300 किलो RDX आया कहां से। और अगर पुलवामा की घटना से पहले प्रधानमंत्री जी अपनी सभा कैंसिल कर दिए इस वजह से कि सुरक्षा कारणों की वजह से, तो उसी पहलगाम में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का 25वीं शादी की सालगिरह मनाई गई। 3 लेयर सुरक्षा में VIP एकत्रित हुए और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, और उसी पहलगाम में एक सिपाही नहीं, एक सैनिक नहीं, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और इतनी बड़ी घटना को हमारी एजेंसियां तो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सरकार के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारी एजेंसियां फेल्योर हुई हैं, ये बताने में कि कोई न कोई बड़ी घटना होने वाली है। ये नहीं बता पाई एजेंसियों, जो हमारी एजेंसियां सुरक्षा की, और लगातार घटनाएं हुई हैं। और केवल ये तो कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं, सीमाओं पर लगातार हमारे सैनिकों पे हमले होते रहे, हमारे सैनिक शहीद होते रहे। यही तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सरकार कहीं कहीं नाकाम है, पिछली सरकारों पे आरोप लगाते थे, जो सुरक्षा नहीं कर पा रही, हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, और लगातार सर कट रहे हैं, लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं। अफसोस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गवर्न हो रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत क्या करेगा, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये तय अमेरिका करेगा। और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका पाकिस्तान में कैंप किया, और सालों साल रहे अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान के अंदर, और जब तक ओसामा बिन लादेन को मार नहीं लिए तब तक वो अमेरिका के सैनिक वापस नहीं गए।
और वो अमेरिका हमको सलाह दे रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें गर्व होता है कि ट्रंप साहब ने कहा इसलिए युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस फैसले से 140 करोड़ भारतीयों का सीना जो गर्व से ऊंचा होना चाहिए वो झुका हुआ है, सर झुका हुआ है 140 करोड़ भारतीयों का। लेकिन आप ये बताएं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्या आपको क्या लग रहा है कि इसका जमीनी इम्पैक्ट क्या होगा, इसका जमीनी प्रभाव क्या होगा प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्योंकि पूरी बात सुनने सर, जी 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 बोलिए 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 प्लीज प्लीज। देखिए जिस तरीके से ये मीडिया के बड़े बड़े साथी, आप जैसे कुछ चुनिंदा पत्रकार साथियों को छोड़ के, कुछ यूट्यूब चैनल को छोड़ करके जो बड़े चैनल हो तो रातों रात पाकिस्तान पे कब्जा करा रहे थे जी। पूरा पाकिस्तान को, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा रहे थे। तमाम एयरबेस ध्वस्त हो गए इसकी खबर चला रहे हैं, तमाम बातें तमाम तरीके की कर रहे थे। लेकिन भारत की जनता वह जनता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है। भारत की जनता वह जनता है जो संकट में युद्ध नहीं शुरू हुआ था उसके पहले तमाम कलेक्टर के यहां हमारे किसान, जो सबसे कमजोर कड़ी भारत का माना गया है आज के दौर में, किसान अनाज देने चला गया। कई कलेक्टर्स को हमारे किसान अनाज देने के चले गए कि हमारे पास 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल अनाज है, ये आप लीजिए, लेकिन देश के सम्मान से स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम देश के सैनिक के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। लड़ाई आर और पार की होनी चाहिए, लेकिन ये लड़ाई आर और पार की नहीं हो पाई। ये बड़ा अफसोसजनक है। निश्चित रूप से इससे पूरे भारतीय बहुत मर्माहत हैं और बहुत दुखी होंगे। मुझे ऐसा महसूस होता क्योंकि मैं अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, जिस प्रकार से बीजेपी लीडर्स का जो स्लोगन था कि मन भूमि से रणभूमि तक उनके नापाक कोशिशों को हमने नाकाम कर दिया, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ये फुलफिल हो गया? आगे जाके कहा कि हमने उनको न्यूट्रलाइज किया, लैंड सी एयर सब जगह हमने पाकिस्तान, और मजबूर हो गए पाकिस्तान सर। तो क्या कैसे मैच करोगे स्लोगन जो बीजेपी के लीडर्स दे रहे थे? देखिए बीजेपी के सारे स्लोगन जो है हवा हवाई हैं, और इस बात को देश की 140 करोड़ की आबादी का एक एक नागरिक बखूबी महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ स्लोगन देना जानते हैं, नारे देना जानते हैं, लड़ने की इनकी हैसियत नहीं। क्योंकि देश की आजादी के पहले भी जब देश आजाद कराना था अंग्रेजों से, तब भी आरएसएस का जो चरित्र रहा सब जानते हैं। मैं उसके इंटरनल बहुत नहीं जाना चाहता कि लड़ाई में कौन कहां खड़ा था, सावरकर साहब कहां खड़े थे, चंद्रशेखर आजाद कहां थे, भगत सिंह कहां थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां थे, इन सब बातों में नहीं, लेकिन पूरा देश जानता, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर रहा है। लेकिन ये अफसोसजनक है कि भारत को गवर्न जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये खबर चला रहे थे कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, जो युद्ध आज तक चल रहा है। वो कीर्तिनिधि पांडे जी, एक छोटा सवाल, छोटा सवाल। ये बात साबित हो गई कि जो लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी का कंट्रोलर जो है वो अमेरिका है। बट व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कीर्तिनिधि पांडे जी, क्यों? क्या ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मोदी जी को यह करना पड़ गया? इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आई विल चेज देम डाउन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, धरती के किसी भी कोने में छुपे हों, मैं उनको वहां पे छोड़ूंगा नहीं, और जिसकी भी जमीन इस्तेमाल हुई है भारत के खिलाफ हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एग्री करने के लिए क्या ऐसी मजबूरी आ गई? सर पांडे साहब, देखिए मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर अमेरिका अपने देश पे हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के अंदर कैंप करके ओसामा बिन लादेन को मार सकता, तो भारत के भी सरकार को यह हक है कि जो लोग भारत के अंदर टेररिज्म पैदा करें, आतंकवाद पैदा करें, आतंकवादियों को प्रोत्साहित करें, जो भी मुल्क हो, मैंने कहा था केवल पाकिस्तान, जो भी मुल्क भारत के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों को पैदा करने का काम करे, उनके खिलाफ भारत की सरकार को फैसला लेने का हक है, उनके खिलाफ भारत की सरकार को कार्रवाई करने का हक है। लेकिन किन परिस्थितियों में मोदी जी सरेंडर कर गए? किन परिस्थितियों में मोदी जी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया?
किन परिस्थितियों में 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का सौदा कर लिया मोदी जी ने? ये बात तो बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। हमारे दो साथी, हमको लगता है इसका जवाब वो ज्यादा बेहतर देंगे। let me go to बीएन कुमार साहब। बीएन कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी जी इसके ऊपर सहमत कैसे हो गए? मतलब अभी तक तो बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में वापस आएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 15 तक चलेगा। 1.5 साल 2 साल भी हमें लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद को हम पूरा खत्म करेंगे। बीएन कुमार साहब, ये क्या हुआ अभी? मतलब मेरी हो सकता है कि मेरी इतनी बुद्धि ना हो सकता है शायद। सर आप बताएं। बुद्धि का सवाल नहीं है। आई थिंक इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट बी ओवर इन हिज माइंड, बिजनेस इंटरेस्ट। क्योंकि उसने जो टैरिफ का जो उसने अनाउंस किया था, टैरिफ फॉर टैरिफ करके, शायद प्रोबब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ फ्रॉम हिम फ्रॉम द यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस के हिसाब से। दूसरी बात, अमेरिका हैज लॉट ऑफ बिजनेस स्टेक्स इन इंडिया। अभी इट इज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग बेस, यहाँ से बन के वहां पर चीजें जा रही है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन लोगों का, आपस में लॉट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट है। और उसको तो पाकिस्तान, इंडिया, यूएस विल नेवर allow that thing to suffer। पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान को आर्म्स दो और उसके बदले में एड दो और बाद में उनसे पैसे वसूली करो। अब अपने को भी तो पैसा दे रहा है, बट ही इज नॉट, आई थिंक दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट ओवरवेट हिज माइंड। नंबर 2, सबसे पहली बात, जैसे पुरानी जो पहले के साथी कह रहे थे, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आरकेबी यू विल रिमेंबर, इट वाज भारतीय जनता वाज वेहेमेंटली अपोज्ड। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरेंडर्ड। इतना बड़ा बांग्लादेश जीतने के बाद में हम लोगों ने घुटने टेक दिया। 90,000 क्या नाम है इनको छोड़ दिया। बोला कि अब इंदिरा गांधी ने घुटने टेक दी। इट इज अ बिग सरेंडर फॉर द कांग्रेस, फॉर द गवर्नमेंट। बॉर्डर में जितने विलेज हम लोगों ने कवर किया था ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, काफी हमने छोड़ा, काफी उन्होंने छोड़ा। वी हैव गिवन अप, वी शुड हैव फिनिश पाकिस्तान। आज की तारीख में भी चल रहा था, वी शुड हैव फिनिश पाकिस्तान, पीओके खत्म कर देंगे। ये सब हवाई बातें हैं, इतना आसान नहीं है आज के तारीख में पीओके को पूरा कब्जे में लेना, ये करना वो करना, या फिर 4 टुकड़े कर देना पाकिस्तान। ये सब बिल्कुल हवाई बातें हैं। और मोदी, बीजेपी हैव बीन सर्वाइविंग ऑन एम्प्टी स्लोगन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट पीपल हैव बीन सीइंग इट। Unfortunately for the opposition and fortunately for BJP, there is no opposition. I mean, there is nobody who can collectively fight this BJP and their MPs. But बीएन कुमार साहब, क्या आपको लगता नहीं, you don't see a victory where BJP says that what we went for we achieved? 4 जैश-ए-मोहम्मद कैंप्स डिस्ट्रॉय किया, 3 LET लश्कर-ए-तौयबा खान, 2 हिजबुल मुजाहिदीन। We had the water plan where we starved them for water, where Indus plan was there, फिर चेनाब, रवि, बियास, अलग अलग वहां पर हो रहा है। हवाई हमला में हमने 8 एयरपोर्ट कल रात को ही ध्वस्त कर दिए, इंक्लूडिंग रावलपिंडी। We are entering into a ceasefire on our terms. On our terms is what the government says. It's on our terms. You know, they say it's a victory. बीएन कुमार जी, हकीकत वी नो कि जितने मारे गए क्या हुआ। असली चीज मुद्दा तो मेन जो है, दे शुड हैव इम्प्रेस्ड अपॉन ट्रम्प कि भाई जितने भी टेररिस्ट है सारों को हैंड ओवर कर दो। लेट देयर बी इंटरनेशनल डिक्लेरेशन बाय पाकिस्तान दैट वी विल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। लेट देयर बी, वी शुड आस्क ट्रम्प, पहले हमारे टेररिस्ट को वापस करो, तब हम जाके ये करेंगे ना। बट टुडे वी डोंट हैव फेस सो टू से। the DGMO, the defense press said that raise this kind of question, इस तरह के क्वेश्चन आप और हम पूछेंगे। the defense press release में जिस प्रकार से बात कर रहे थे, we got Mrs. Qureshi, Colonel Qureshi said the first talk came from DGMO Pakistan around 4 o'clock. The first initiative was from Pakistan ki we want to enter into a ceasefire, and then we went ahead with the request, their request. We proceeded with their request. The first attempt came from Pakistan. That's what the official release from the Indian defense. बीएन कुमार जी, but announcement was made by Trump ना, कुछ भी हो, announcement किसने किया ceasefire का? The world was told by Trump and not by Modi, not by All India Radio. So let me go across to Dr. Dhone. सर ऐसा है कि
अगर पाकिस्तान ने भी बोला होगा कि सीज फायर करो हमारी इच्छा है, तो पाकिस्तान ने बोल दिया और भारत सरकार ने मान लिया। ये क्या वो क्या दोस्त है अपने कि उन्होंने बोले और हमने मान लिए? ये तो 56 इंच सीने वाली बात करते सर थे मैं ना। आपको एक छोटी सी बात बताता घर में हूँ। घुसने की बात करते थे, तो पाकिस्तान ने एक बार बोल दिया और इन्होंने मान लिया। अच्छा, पाकिस्तान ने तो भारत सरकार ने तो डिक्लेयर भी नहीं किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं। वो तो उन्होंने बोला मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ट्रम्प ने बोला कि मैं अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान क्या में सीज फायर दोनों देशों ने मान लिया और हमने मध्यस्थता की है। ये तो उन्होंने डिक्लेयर तो आपको क्या लगता है सर क्यों हुआ ऐसा? हाँ? आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? नहीं, डॉक्टर मेरा मोदी? व्यक्तिगत विचार ऐसा है, एक तो मोदी जी का जो बोलते हैं 56 इंच सीना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोई 56 इंच सीने वाले आदमी नहीं है। एक बात शायद उनको इन्होंने बोला होगा, अदानी जी ने बोला होगा कि भाई मेरे वहाँ पाकिस्तान में भी धंधे चल रहे, बिजली निर्मित कर रहा हूँ मैं, और अमेरिका नाराज हो जाएंगी, पाकिस्तान में मेरा कारोबार डूब जाएगा, क्यों कर रहे, बंद कर दो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। तो वो इसलिए उन्होंने बंद किया सर होगा। मैं आपसे ये एक बात सवाल हो सकती पूछूं है। इस विषय में। और एक बात, वो जो हिम्मत चाहिए, जी। जो निक्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने बोला था कि ये मत करो, बांग्लादेश जो मुक्ति जो शुरू किया था मुक्ति वो वाहिनी। युद्ध, आप मत करो। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। तो सर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं। सर छोटी सी बात। का कहा 56 इंच अरे सीना कहा डॉक्टर गया? साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आप पुराने समाजवादी पार्टी के हैं और अभी कांग्रेस में हैं। तो इन इफेक्ट वी गॉट टू पीपल फ्रॉम द समाजवादी पार्टी विद अस, कीर्ति निधि पांडे साहब और आप दोनों। मतलब आप भी नेताजी के बड़े क्लोज थे सर, ऐसी बात नहीं है। नेताजी हमारे भी नेता थे, ऐसी बात नहीं। और नेताजी ने नेताजी ने एक बात कही थी, ये मुझे दोहराने दो सर, मुझे रोको नहीं अभी। नेताजी ने एक बात कही थी, यानी मुलायम सिंह यादव जी ने, बीएनके प्लीज लिसन टू दिस। लोकसभा के पटल पर जब वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में वापस नहीं आएगा, आतंकवाद की समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जब भी आप चेक कर सकते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। सर धोने साहब, don't you think one of the reasons why Mr. Modi could have agreed to whatever Mr. Trump said could also be because a huge amount of American manufacturing is shifting to India. अगर ये युद्ध जो है ज्यादा देर चलता, टेंशन यहां पर रहती, we would have suffered all that plan, because all these are private companies, they are multinationals. They would have had to change their plans. That is number one. Number two, उमर अब्दुल्ला साहब, ऊपर से hats off to him, जहां जहां पर बमबारी हुई, जहां जहां पर तोप के गोले चले, उमर अब्दुल्ला साहब was the first person to reach there. अपनी सिक्योरिटी को की परवाह ना करते हुए, कुछ ना करते हुए लोगों के पास गए। लेकिन वो भी कह रहे थे कि भैया अगर कश्मीर में अभी टूरिज्म वापस नहीं आया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। So don't you think that could have played a role? What do you think, धोने साहब? नहीं सर, ये तो ठीक है, ये बात बराबर है। सबसे पहले तो ऐसा है कि ये युद्ध तो नहीं होना चाहिए। युद्ध होना किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना भारत के लिए ना पाकिस्तान के लिए। लेकिन शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है, इसीलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि उनको सबक पूरी तरह से सिखाया नहीं गया है। जो मोदी जी ने जो बातें किए, बड़े बड़े दावे किए थे, वो हुआ नहीं, वो फेल हो गए। दूसरी बात, देश के लोगों की भावना जो थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। देश की जनता नाराज हो गए। देश की जनता का छोड़िए, बीजेपी के फॉलोअर हमने देखे सोशल मीडिया पे, वो भी नाराज हो गए। और आज अपना देश के अपन ने निर्णय लेने का अधिकार क्या अमेरिका को दे दिया, ये नया मुद्दा आ गया जी। ये देखिए, पैसे की व्यवहार जो है, व्यापार की बात अलग है, लेकिन देश का जो स्वाभिमान रहता है, बोलते हैं ना, देश के स्वाभिमान को हम ये नहीं होने देंगे, बहुत बड़े बड़े बातें करते थे। देश को हम बिकने नहीं देंगे, स्वाभिमान की सब बातें करते थे। कहाँ गए ये? क्या पैसों के लिए? हम तो बोल रहे हैं कि अदानी ने बोला होगा इनको रोक दो कि मेरा नुकसान हो जाएगा। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अदानी उनके पार्टनर है मोदी जी के, यहाँ तक बोलते हैं। अभी हम नहीं मानते ये बात को, लेकिन हमने सुना है लोगों के मुंह से कि ये जो हुआ है लेकिन आतंकवादी, यहाँ पर हम तो धोने मानते हैं। साहब और क्या, और कीर्ति निधि पांडे जी और बीन के, यहाँ पर एक चीज और है कि बाकी सब चीजों पे ये कहा गया है कोई बातचीत नहीं होगी। जो डीजीएमओस के बीच में जो मीटिंग होने वाली है,
मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, और उसके बाद मंडे को यानी 12 तारीख को उस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि हम लोग एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। जो पासपोर्ट्स हैं, जो वीसाज हैं, वो दे रिमेन कैंसल्ड, जो ट्रेड रिलेशंस हैं दैट रिमेन्स बैंड, और जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है दैट रिमेन्स सस्पेंडेड। ये कहा जा रहा है सर। धोनी साहब, दोनों साहब, धोनी साहब बोलिए। नहीं सर, ठीक है ना, ये तो ठीक है, युद्ध तो रुकवा दिया ना सर, ये तो ठीक है, ये बातें बयान हो गए, ट्रेड बंद हो गया, सब हो गए, वो ठीक है, लेकिन बदला कहाँ पूरा हुआ? जिन्होंने मारे वो कहाँ गए? अभी यही है सर। दोनों साहब जो लिस्ट तो उनको फांसी देना चाहिए थी सर। दो लिस्ट जो बीजेपी रिलीज किया है, जो लिस्ट जो बीजेपी सोशल मीडिया में टोटल वायरल है कि एयर, सी एंड लैंड, हमने उनको मात दे दिया। इंडस वाटर जो ट्रीटीज आपने देखा, सबने पूरे देश ने देखा, पानी बंद तो पानी नहीं तो कौम नहीं, उनका यह स्लोगन था कि पानी नहीं तो कौम नहीं, बर्बाद हो गए। 8 हवाई अड्डे कल रात को उड़ा दिया, और जो टेररिस्ट के टॉप लीडर्स को उड़ा दिया, जो 9 लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किए, वो एविडेंस है, वो एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है, उसका प्रूफ पूरे दुनिया को दिया। तो जब वो कहते हैं कि वी हैव रीच्ड अ सीजफायर ऑन आवर कंडीशंस, हमारा कंडीशंस पे हमने सीजफायर किया है, तो गलत किधर है? इट्स अ विक्ट्री। दोनों साहब, बीजेपी का कहना है इट्स अ विक्ट्री। नहीं सर, ऐसा है, लोगों को कहां लग रहा है ये सब बातें? लोगों के दिल में जो जज्बा था, लोगों के दिल में जो बदले की भावना थी, वो कहां पूरी हुई? लोगों ने अपने 26 लोगों को मारा, तो उसका जो कहा बदला लोगों को कहां दिख रहा कि भाई ये सरकार ने बदला लिया? और जो मोदी जी से लोगों को अपेक्षा थी, ये तो विश्वगुरु है ना, ये विश्वगुरु है, तो ये विश्वगुरु क्यों दूसरे की सुनते हैं? यूक्रेन का युद्ध रोकने वाले मोदी जी को अमेरिका ने बोला और आपने युद्ध रुकवा दिया, तो इसका मतलब ये आपने देश को कमजोर साबित कर दिया। और आपको बात बताओ, इससे भारत सरकार, भारत देश का भी नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी तो अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही कहीं पे। जो बातें कर रहे हो हिंदू मुसलमान का जो किया, अब तो मुसलमानों ने दिखा दिया कि भाई हम लड़ने को तैयार है, हम मरने को तैयार है। मुसलमान तो वहां पे एक फौजी मर भी गया, और इस देश के मुसलमानों ने भी दिखा दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के खिलाफ में जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की वो भी खत्म हो गई। इसमें बीजेपी का नुकसान हो गया, और जो देश का स्वाभिमान था वो भी खत्म कर दिया बीजेपी। तो दोरे साहब, you don't believe when BJP says that जो मुजफ्फरबाद में हमने फोटो दिखाया लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, जो अजहर महमूद, जो मसूद अजहर जो रो रहा था, हमारे 10 फैमिली को तबाह कर दिया, हम भी शायद मर जाते, अल्लाह को प्यारा हो जाता, स्वर्ग पहुंच जाता। तो ये दृश्य पूरे दुनिया ने देश ने देखा, दुनिया ने देखा। यू डोंट गिव सिग्निफिकेंस टू दैट धोनी साहब? नहीं ठीक है ना, अजहर मस्जिद को देखिए, उसके परिवार को मारा है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है? उसको कहाँ मारे हैं? उसको तो छोड़ने वाले आप ही है ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो, मंत्री ने खुद, जसवंत सिंह उनको साथ में लेके गए थे, और उनको वेलकम करने के लिए कौन थे? अजित डोवाल थे वहां पे खड़े। अजित डोवाल ही थे ना, जो बीजेपी के बहुत चाहते हैं, वो तो उस वक्त उनको वेलकम कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे अजहर मसूद के साथ। तो इन्होंने तो छोड़ा है। Right, so let me go across to Kirti Nidhi Pandey ji. Pandey ji, just a final analysis from you. जैसा अभी मैंने बोला कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी रिमेन सस्पेंडेड, पाकिस्तान को कोई दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी, पाकिस्तान के सारे वीसा जो हैं वो सारे कैंसल्ड हैं, अब भारत का ट्रेड रिलेशन कुछ नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, ऑल दैट इज ऑफ द टेबल। सो आपको क्या लगता है कि अब वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा? वो भी इंडस रिवर वाटर ट्रीटी भी फिर वापस एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रेड रिलेशन भी फिर दोबारा हो जाएंगे, और बाकी सब चीजें, वीसा सब चालू हो जाएगा? क्या लगता है सर आपको? देखिए, जो परिस्थितियां आप दिख रही हैं जी, जो सिचुएशंस दिख रहे हैं भारत के अंदर जी, जिस तरीके से सरकार कमजोर दिख रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोई पाबंदी नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे अमेरिका के दबाव में सारी पाबंदियां हटा लेंगी भारत की सरकार, और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वीजा बहाल हो जाएंगे, पानी बहाल हो जाएगा, जो भी बैन है सब हटा लिए जाएंगे। जब युद्ध विराम हो गया, बिना युद्ध हुए अगर युद्ध विराम का ऐलान करे अमेरिका, हमारा युद्ध
हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारे भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान के सवाल का फैसला अगर अमेरिका तय करेगा, ट्रंप साहब ऐलान करेंगे कि सीज फायर रहेगा भारत और पाकिस्तान के अंदर, और ट्रंप साहब को खुशी हो रही है इस बात का ऐलान करने में, तो कहीं कहीं सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है, और लड़ने की इच्छा शक्ति कमजोर होगी तो कोई लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती, वो लड़ाई फाइनल नहीं हो सकती। और हमें लगता है कि सारी चीजें आने वाले दिनों में हम आप फिर कभी मिलेंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहाल करेगी और धीरे धीरे सब चीजें बहाल हो जाएंगी। कृति पांडे साहब, इस आफ्टर टेरर अटैक्स कश्मीर के लोग बाहर निकले, कश्मीर के हर जिले से लोग सड़क पर निकले अपने आप। उमर अब्दुल्ला जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा, ऐसा स्थिति हमने कभी नहीं देखा कि कश्मीर के लोग अगेंस्ट टेरर इस प्रकार से और खुल के सामने आकर विरोध कर रहे हैं। ये कश्मीर के हाँ बोलिए पांडे जी बोलिए। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कश्मीर के अंदर कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई और जो परोसा गया, तमाम मीडिया साथियों ने जो परोसा कि जाति पूछ के नहीं धर्म पूछ के मारा गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मारा गया, जो नमाज नहीं पढ़ पाया उसको मारा गया, हिंदू धर्म के आधार पे लोगों को मारा गया, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ी खाई टेररिस्ट पैदा करना चाहते थे भारत के अंदर, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत के नागरिकों ने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर के उसका जवाब दिया, और कश्मीर के लोगों को साधुवाद और धन्यवाद कि कश्मीर का एक एक नागरिक इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ, सरकार के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आप एक बार विचार करिए कि उस कश्मीरी लोगों को क्या मिला, जो आतंकवाद के खिलाफ मुखालफत किए, सड़कों पर आए, अपनी दुकानें बंद किए, भारत की एकता और अखंडता के लिए लगातार आगे रहे और ये संदेश दिया कि इस देश का मुसलमान भारत की सरकार के साथ खड़ा है, भारतीयता के साथ खड़ा है, 140 करोड़ की आबादी के लोगों के साथ खड़ा है। क्या उसको यही नाम मिला? लेकिन मुझे एक चीज का मलाल है सर, कीर्तिनिधि पांडे जी, धोने साहब और वीरेंद्र कुमार साहब, मुझे एक चीज का बहुत बड़ा मलाल है। 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, 22 अप्रैल को सर, 22 अप्रैल को 26 लोगों को मारा गया सर। आज तक वो 4 लोग मिले नहीं है, मालूम है ना आपको? जिन 4 लोगों ने उन लोगों को मारा, 26 लोगों को, वो आज तक मिले नहीं है सर। अरे सर, मैं तो कह रहा हूं कि जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया इसका पता नहीं लग पाया। भारत की इतनी एजेंसियां हैं, जब ये नहीं पता लगा पाई कि 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से, जिससे हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हुए, 40। तो फिर ये 4 सैनिक कहां से आए और कैसे मार के चले गए? सीमा पार से इस पार आए 300 किलोमीटर और मार के वापस चले गए और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है इस भारत की सरकार के लिए, और युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप साहब कर रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक स्थिति है भारत के नागरिकों के लिए, शर्म का विषय है। 300 किलो जो आरडीएक्स आया, कैसा आया, क्या है? सत्यपाल मलिक साहब का जरा इंटरव्यू सुनिए, बताएंगे किसने लाया था वो आरडीएक्स। तो दोनों साहब बीजेपी को ही कटघरे में डाल दिया सर। दोनों साहब, आर यू सीइंग अ पॉजिटिव व्यूज इन व्हेयर कश्मीर इज कंसर्न्ड? जिस प्रकार से यहाँ इस पार भी लोग आतंकवाद के खिलाफ है, मुजफ्फराबाद के लोग भी अमन चाहता है, तो क्या एक नया एक दौर आने वाला है कश्मीर एंड पीओके इज कंसर्न्ड? दोनों साहब नहीं, ये तो सर देखिए, युद्ध से तो किसी का फायदा होता नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान के तरफ से होता है शुरुआत, वही हमेशा शुरू करते हैं, लेकिन उसका जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। हम बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी है कि वो नहीं हुआ ऐसा। हम नहीं, पूरे देश के लोग दुखी है आज। लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसका जो एंड ऐसा होगा, ऐसा नहीं लग रहा था। हमको तो प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास था कि वो देश के, दुनिया के कहीं भी कोने पे छुपेंगे वो लोग, तो ढूंढ के लाएंगे, उनको खत्म करेंगे, लेकिन 4 लोगों को भी नहीं पकड़ पाए वो। हम तो बहुत दुखी है आज। जिन्होंने मारा है उनको हम मार नहीं सके। BNK, do you see the situation coming back to normal very, very quickly, or do you think this will continue? Normal in the sense Indo-Pak relations, मतलब yes, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. धीरे-धीरे हो जाएगा। Which means Indus River Water Treaty will be revived, which means everything. रिवर्स वाली बात जो चल रही है, अब बारिश का इंतजार कीजिए ना, हम पानी को कितना रोक सकते हैं?
It is not easy to stop water. कल को बारिश ज्यादा होगा, but No, we'll have to release it at that time. First one So, is, sir, बांध के yeah, we sluice have gates to release खोलने it पड़ेंगे. as it is वो सब परिस्थिति पैदा होगी. In fact, there have been landslides वहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन. जी. Right, gentlemen, thank you very much. रिपोर्ट ज्यादा मीडिया में नहीं आई. There have already been landslides. जी, which is true, absolutely true. Right, BNK, thank you very much. कीर्तिनीधि पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Dr. Dhone, always a pleasure having you on the show. Thank you, BNK, for your incisive analysis. Hope to do it again soon sometime. Dr. Dhone, thank you very much. Thank you, sir. And Dr. Dhone is very excited. Now he'll be able to lead all sorts of morchas against Mr. Modi. Yes, yes. Because a ceasefire has been declared. Thank He you is very much. ready to fire on Prime Minister Modi. Yes. Thank you. And we are also quite happy that there will be no further loss of life, at least for some time. मतलब हमारे फौजी फैमिली जो हैं उनका कोई बच्चा जो है वो शहीद नहीं होगा, उम्मीद ये करते हैं। और धोनी साहब के जो लिटरेचर के नॉलेज है, हम लोग चाहते हैं कि लिटरेचर के नॉलेज में भी चर्चा बहुत हो. He's got a fantastic knowledge of the Maharashtra literature and various literature. And छत्रपति शिवाजी महाराज. बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सर, थैंक यू, धोनी साहब, थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय जय शिवाजी, हिंद. वंदे मातरम. Right, Pradeep ji. So we've got we didn't have anybody from the BJP today. Yes, sir. The BJP decided to give it a miss because they would have been asked very, very serious questions as to why did you stop right now. Rightfully speaking, it would have been very, very nice if somebody from the BJP was here and they could have easily told the truth that, hey, listen, you can't carry this situation on for too long. And by the way, as far as the people of Kashmir are concerned and Jammu are concerned, I think they'll be the happiest people in the world today. Because which means कि Pradeep ji, 10 के 15 दिनों के बाद people will start booking tours to Kashmir again. Exactly. Matlab tourism will be back in Kashmir, we'll be back to whatever it is that we were doing, we'll be back to business, it'll be back to business. And probably I think it's a new phase for both Pakistan occupied Kashmir and Indian Kashmir, our Kashmir. Because people, they're fed up of terror. And I don't think they're going to give support to local, even the locals are going to give support to any terror. And I think the condition probably also will be that Pakistan will not support any kind of terror where Kashmir is concerned. I hope it's like that, because when Prime Minister Modi and the team says that ceasefire is on our conditions, then Pradeep ji, that's our condition. let me be very frank with you, even though personally I am disappointed, but it's the practical and realistic thing to बिल्कुल do. सर. सर ऐसा है, बहुत आसान होता है ये कहना, नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसा होता नहीं है सर. Let's be very clear. कहाँ से करेंगे आप? You are not militarily, आप इतने strong नहीं हैं. Let's be very clear. Even, I mean, come on. The Americans weren't able to do it in Afghanistan. They weren't able to do it in Iraq. They weren't able to do it in Syria. आप मतलब छोड़िए ना, मतलब Russians are not been able to do it. सर रशिया की बात अलग है. Russia did not commit itself completely. Saudi can't do it with Yemen. Yemen is concerned. Right. So, but as far Saudi as is a we are giant. concerned, let's be very clear. It was the practical thing to do. Let's be very clear. बड़ी practical चीज करिए कि भैया धंधा बंद नहीं होना चाहिए. Everybody was suffering. Let's be very clear. The Pakistanis may not have suffered too much because they don't have much to lose. Let's be very clear. वैसे ही गरीब देश है, बेचारा भिखारी देश है, वो क्या सफर करेगा? The only people who were suffering over there were the military top brass and the politicians. They were the only people who were suffering, which is why they desperately wanted a ceasefire. कि भाई ceasefire करो किसी भी तरीके से कि हमारी families वापस आएं, allow us to enjoy our ill-gotten wealth. That's what they were scared of. But as far as India is concerned, we've got to work to earn our money. And I don't think Mr. Modi has made a bad decision. It's a good decision. That's my opinion. It's a very practical, very realistic decision. Sir, if you look at the history of wars, you see nobody has actually won a decisive victory. Nobody. So it's the best thing to do was sit across and to take this decision also. It requires a lot of guts. Sir, it requires a lot of guts Yes. just to sit back Bilkul. because knowing fully well what he's going to be facing. Correct. This is just a small example. कल मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बातें आएंगी, कहाँ से मोर्चा कहाँ पे शुरू होगा और ये कहा जाएगा हमारा स्वाभिमान लूट लिया गया, ये लूट लिया गया. It requires guts. Let's be very clear. तो आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन जो निर्णय लिया गया है मेरी समझ में बिल्कुल ठीक लिया गया है. सर, लॉस ऑफ लाइफ इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग. आपने जो करना था कर लिया. माई पॉइंट इज, प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है या तो आपने ये तय कर लिया हो कि हमें पूरे पाकिस्तान को खत्म करना है, देन इज अ सेपरेट इशू. लेकिन अगर आप सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं तो आज की तारीख में तो हाफिज सईद ऐसे चूहे की तरह पता नहीं किस बिल में घुसा होगा अभी, सांप की तरह. Where will you find him? जितने
Sir, as you rightly, Osama bin Laden, ढूंढ के until they found him in Pakistan itself, and US themselves, the biggest country where all kind of software is concerned or intelligence agencies, they couldn't for years and years and years. Sir, it took them 8 years to locate Osama bin Laden, and that too just by chance. And he was right under their nose. Abbottabad mein, right next to the military college in their cantonment. Exactly. And they went through all the mountains of Afghanistan for years कहीं नहीं मिला। and years, pounding तो Afghanistan. वो क्या है, वो बोरा की जो Yes, बोरा yes, जो भी है जगह, वहां पर जो केव्स थी, ढूंढ के पागल हो गए, कहीं नहीं मिला। सर ऐसा है, मेरा ये कहना है कि अभी आपने जो कर लिया, अब आराम से बैठिए। हमारे जो फौजी हैं उनको गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस और उनको इक्विपमेंट अच्छा लेकर के आइए, मेरा ये कहना है। एंड आई वुड पर्सनली लव टू नो कि भाई हमारे असल में एयरक्राफ्ट टूटे हैं, नहीं टूटे, क्या है, जरा रफाल के ऊपर जरा बात बता दीजिए। लेट्स बी वेरी क्लियर, इफ वी हैव लॉस्ट अ रफाल, वी हैव लॉस्ट अ रफाल। आई डोंट थिंक वी हैव, वेरी फ्रैंकली, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद अ स्टेटमेंट लाइक दीज आर द एयरक्राफ्ट दैट वर यूज्ड, दीज आर द एयरक्राफ्ट दैट वी लॉस्ट, और वी डिडंट लूज अ सिंगल एयरक्राफ्ट। सीधा बता दीजिए। ये भारत देश है, भारत देश सच सुनने का आदी है, and we would love it if you just tell us the truth. That's it. And I personally support Mr. Modi's decision to agree to a ceasefire. अब अगर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया तो क्या कर सकता है यार, वो आदमी ऐसा है, he is no respecter of anybody. Rightfully speaking, he should have. And by the way, Pradeep ji, it is far better for Trump to have announced it than for Mr. Modi. It would be difficult from one of the parties to say that that we have agreed to a ceasefire. Yes. It is far better for Donald Trump to It's have the best announced thing it. actually. What happened is the best thing. And then we agree to it. Thank you. Yes. But till now, Modi ji has not tweeted about it at all. Modi ji का जो Twitter handle है, दोनों Twitter handles पे मोदी जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है फिलहाल. But Jaishankar has already endorsed it. Everybody else has endorsed it. So which means there is a ceasefire, and I say thank God for it. And one thing more is emerged that Trump is the unchallenged leader of this particular world, this part of the world. I would say Trump has done us a favor. Yes, Pradeep ji, welcome. More than Pakistan, he has done India a favor. Because, sir, can you imagine the number of tourists we were losing every day in Jammu and Kashmir? Can you imagine the kind of money we were losing just about every day because of cancelled flights, because of airports not functioning, because of businesses down? I mean, come on. As far as the Pakistanis are concerned, we have to look for other ways. अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के साथ we'll have to deal with Pakistan in a different way. जैसा आपने कहा, Vladimir Putin decided to attack Ukraine. He is still fighting a horrible war in Ukraine. And there is nobody who can stop it. Both can't stop it, nor the world can stop it. That is the problem. और जहाँ तक के पाकिस्तान का सवाल है, let's be very clear, war is not the answer. You will have to create internal tensions in Pakistan so that it splits internally, howsoever long it takes. That's what you've got to do. Let's be very, very clear. Only thing is, I hope we don't lower our guard. I hope we don't allow ourselves to be caught on ice again, the way we were in Pahalgam, that we were caught sleeping. मैं उम्मीद करता हूँ कि now we will always be on our guard. कि कोई ऐसा आतंकवादी इंसिडेंट दोबारा भारत में नहीं होना चाहिए. I hope. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. And once again to tell you, I endorse Mr. Modi's decision. Ceasefire is the best possible decision under the circumstances. That's what I think. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself and from the entire Nation Now team. आप सब लोगों को नमस्कार और आप सब लोगों को बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. There won't be any loss of life now. हमारे फौजी जाकर के they won't have to die for a stupid war. For that, I thank everybody. Yes, absolutely. Every life is important. Every life is very, very important. And we thank the Prime Minister and Dr. Jaishankar and everybody else and Ajit Doval and everyone else and Marco Rubio, the Secretary of State of the US, and J.D. Vance, Vice President, for negotiating a ceasefire between India and Pakistan. That's just about it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. और जाने के पहले यार वो क्या है वो सब्सक्राइब कर दो. Subscribe to the fastest growing channel in the nation, Nation Now. Fastest growing channel
in the nation now. तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब लोगों को वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत माता की जय।